Let us go on with today's topic. We will not be having any translation in Hindi, so bear with us. We thank the Lord for this time. And Father, we ask you that you take control of all things. Father, it is not by the hand of man, but it is by your hand that we are delivered, that we are moving forward. And we thank you, Lord, that you take care of all things in our lives. Thank you, Father, that you give us all things. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So we continue with our topic that we have been looking at the past few weeks. And that has been why God sometimes says no. Why does God sometimes say no? It is frustrating for all of us when God says no. It is frustrating for all of us when we don't get what we have been asking for. It is something that really has turned people off from following God because they have not received what they have asked for when they have asked for it. And God is someone that when He does things, He does them all for a reason, and He does them all looking into the future. He knows what is best for us, He knows what is not good for us, and He knows what things will drive us away from Him. So the first thing we have to keep in mind is that God knows what He's doing, that His plans for us are good and not of evil, and that if He says no, there's normally a reason behind it. It is not because He's playing a game. It is not because He is evil. It is not because He wants us to suffer more. It is only because His timing is perfect. So we have to see all things. I think Brother Atul is trying to connect with us. Let's see. We are live right now. Yes. Welcome, Brother Atul. Yes, Pastor. Yes, praise the Lord. Thank you for joining us. धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। Yes, let us continue with our teaching. और आइए हम लोग अपनी वही शिक्षा में लगातार जारी रखेंगे। So we are talking about why does God sometimes say no? और हम लोग शिक्षा सीख रहे थे कि क्यों और कैसे परमेश्वर काफी बार हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं कहकर देते। We have said that He knows what is best for us. और हमने सुना था कि वो जानते हैं हमारे लिए कौन सी बात उत्तम है। And also because He knows that sometimes if He gives us what we're asking for, we will walk away from Him. क्योंकि वो जानता है कि कभी-कभी अगर कोई चीजों को वो हमको दे दे तो हम उससे निकल के चले जाएंगे। Sometimes the troubles we have in life is what keep us compassionate. काफी बार हमारे जीवन में संघर्ष होते हैं, वह हमें परमेश्वर के लिए बहुत ही उत्साही बनाए रखते हैं। The troubles we have is what keep us humble. और जो संघर्ष हमारे जीवन में बने रहते हैं, वे हमें नम्र बनाते रहते हैं। The troubles we have is what keep us together as a family. और जो संघर्ष हमारे जीवन में होते हैं, वह हमें एक साथ मिलाए रखते हैं एक परिवार के रूप में। Have you seen how poor families live? क्या आपने कभी देखा है कि कैसे एक गरीब परिवार जीवन जीते हैं? They eat together. वे एक साथ भोजन करते हैं। They go everywhere together because they can only afford one car. और वे जो है एक साथ ही कहीं पर इधर-उधर जाते हैं क्योंकि वे कार अफोर्ड नहीं कर पाते। They spend time together because they only have 1 or 2 bedrooms for a big family. और वे जो है अपना ज्यादा से ज्यादा समय एक साथ बिताते हैं क्योंकि उनके परिवार में
एक या दो ही बेडरूम होते हैं उनके संपूर्ण परिवार के लिए, There's probably only one TV in the whole house. और ज्यादातर देखा जाता है कि एक घर में एक ही टीवी होता है, They maybe share only one computer. और हो सकता है कि वे सिर्फ एक ही कंप्यूटर को मिलकर काम करते हैं। So there is unity and they are forced to stay together and live with each other. तो वहां पर उनमें एक एकता होती है और उनको जो है एक प्रकार का दबाव होता है कि उन्हें एक साथ जीना है और एक दूसरे की सहायता करते हुए जीना है। So in that time they spend together is when they learn to love each other. तो यह समय जो होता है जहाँ पर वे एक दूसरे के साथ बने रहते हैं और जीवन जीते हैं, तो उसी के द्वारा वे जो है एक दूसरे को सिखाते हैं। And have you seen how the difference is when there's a wealthy family? और आप उसकी भिन्नता को देखोगे अगर आप किसी एक अमीर परिवार को देखते हो तो। You see, they don't eat together normally. आप देखोगे कि वे साधारणतः से एक साथ भोजन नहीं करते, They each have their own car. और उन सभी की अलग अलग कार है, They each have their own bedroom with their own TV. और उन सभी के पास उनका अलग बेडरूम होता है, और उन बेडरूम में सबकी एक अलग अलग टीवी भी होती है। They each have their own laptops. हर एक के पास उनका खुद का एक लैपटॉप होता है, And there's no real need to be together and spend time together. तो उन लोगों में ऐसी कोई सच्ची आवश्यकता ही नहीं होती है ताकि वे एक साथ रहे या फिर एक साथ समय को बिताए। So we see there's a difference there compared to the rich family and the poor family. तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बड़ी भिन्नता गरीब परिवार में और अमीर परिवार के बीच में। If you knew that if you gave your family everything they asked for, they would become separated, would you give that to your family? और यदि आप यह जानो कि अगर आप अपने परिवार को जो कुछ वो चाहते हैं सब कुछ दे दो और वो अलग अलग हो जाएंगे, तो क्या आप उनको वो सब दोगे क्या? So we have to understand that God sometimes allows troubles in our lives so that we stay together. तो हमें यह बात समझनी है कि कभी-कभी परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार के संघर्ष को आने देते हैं ताकि हम लोग एक साथ बने रहे। Does that mean God will not give us things to enjoy? तो इसका अर्थ क्या यह है क्या कि परमेश्वर चीजों को नहीं देंगे ताकि हम उसका आनंद उठाएं? Does that mean that God will not bless us? क्या इसका अर्थ ऐसा है कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं करेंगे? No. नहीं, But He will always give us what is best for us and what we will truly enjoy. लेकिन वह हमेशा वही चीज हमें देता है जो हमारे लिए सबसे उत्तम है और जिसके द्वारा हमें आनंद मिलता है। When you learn to enjoy what He's giving you at this very moment, और जब आप जो कुछ भी वो देता है उस समय में उसका आनंद, उस क्षण में उसका आनंद उठाना सीखते हो, तब then you will appreciate the next thing that's coming. तो जो आने वाली चीज है उसके लिए भी आप उसकी सराहना करोगे। If you have a very small ministry right now, और यदि इस समय में आपकी बहुत ही छोटी सी सेवकाई है तो, and you're really learning to enjoy it, और सच में आप उसमें आनंद उठा रहे हैं, and you're really doing everything you can with it, और उसमें आप जो कुछ भी कर सकते हो वो सब कुछ काम कर रहे हो, तो then God will give you more. तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे देगा। See, God wants us to grow from glory to glory. देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बढ़े महिमा से महिमा तक। He wants us to enjoy completely what we have right now so that we can go to the next step of joy. और परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है इस समय में उस पर हम बहुत ज्यादा आनंदित हो जाए ताकि हम लोग आनंद के अगले चरण में भी प्रवेश कर पाए। And this means this is the same for your family, for your business, for your ministry. और यह बात जो है एक समान है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सेवकाई और आपके बिजनेस के लिए भी। If you cannot enjoy who you are, God will not bring more people into your life. और यदि आप यह ना जानो कि आप कौन हैं, परमेश्वर आपके जीवन में लोगों को नहीं लेकर के आएंगे। If you cannot enjoy who you are alone, then God will not bring other people to your family. यदि आप अकेले में इस बात को जानकर के आनंद नहीं उठाओगे कि आप कौन हैं, तो फिर परमेश्वर आपके परिवार में और भी लोगों को लेकर के नहीं आएगा। There are many people that live a sad life because they are single.
और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में दुखी जीवन महसूस करते हैं क्योंकि वे अपने जीवन में अकेले हैं। They feel that if they don't have a spouse, then they are not complete. वे इस प्रकार से सोचते हैं कि यदि उनके जीवन में कोई साथीदार नहीं है तो वे अधूरे हैं। If you feel that way, I guarantee you will never find a spouse. अगर आप इस प्रकार के विचार रखते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको कभी भी एक साथीदार नहीं मिलेगा। And if you find a spouse, you will not be happy. और यदि आपको साथी मिल भी जाए तो भी आप उसके साथ खुश या आनंदित नहीं रहेंगे। So you have to first learn to be completely satisfied with Christ. तो सबसे पहले आवश्यकता है कि आप पूरी तौर से मसीह के साथ संतुष्ट रहना सीखें। You have to be completely satisfied and enjoying what God has already given you. और आपको सीखना है पूरी तरह से संतुष्ट रहना और जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है उसमें आनंद उठाना। And enter that rest that it means to be with Jesus. और उस विश्राम में प्रवेश करो जिसका अर्थ है प्रभु यीशु मसीह। Then and only then will God start to open the heavens and pour out the blessings upon you. और फिर तब ही परमेश्वर अपने स्वर्ग को खोलकर आपके ऊपर में आशीष की बारिश करेगा। Let's look at the story of brother Paul in the Bible. आइए हम लोग बाइबल में प्रेरित पौलुस की कहानी को देखें। We go to 2 Corinthians हम लोग जाएंगे दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक में chapter 12 12 अध्याय verse 6 to verse 10. वचन 6 से लेकर 10 तक। Says, for though I would desire to glory, I shall not be a fool, for I will say the truth, but now I forbear, lest any man should think of me above that which he seeth me to be, or that he heareth of me. क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूँ तो मूर्ख न होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूँ। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। So here we see that Paul very clearly, first of all, is saying that he doesn't want to boast. तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि वह घमंड करना नहीं चाहता। Now, bear in mind, this is not the way Paul used to be. तो अगर हम देखा जाए तो पौलुस का जीवन या उसकी सोच इस प्रकार से नहीं थी। And Paul was someone that was very arrogant, very boastful. और उस समय में पौलुस जो है बहुत गुस्से में है और बहुत ही अशांत मन के साथ वहां पर है। And he is full of pride. और वो पूरे घमंड से भरा हुआ है। He has a lot of knowledge about the Bible. और हमेशा बाइबल के विषय में उसके पास बहुत सा ज्ञान था। He was very respected among all the other Pharisees. और फरीसियों के बीच में वह बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति था। He had a double citizenship. और उसके पास 2 नागरिकत्व थे। He was a Roman and he was a Jew. और वह रोमी भी था और वह यहूदी भी था। And he came from a wealthy family. और वह एक बहुत ही अमीर परिवार से आता है। He was very, very well educated. और वह बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। He spoke many different languages. और उसने बहुत सी अन्य भाषाएं बोली। He was probably the smartest of all the apostles. और सभी प्रेरितों में वह सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति था। And he knew the Old Testament better than any of the other apostles. और दूसरे सभी प्रेरितों से बढ़कर उसे पुराने नियम का ज्ञान था। And because he knew the Old Testament so well, he was able to understand and write big part of the New Testament. और क्योंकि वह पुराने नियम को बहुत ही अच्छे समझ पाता था, इसीलिए उसने नए नियम के बहुत सारे किताबों को लिख पाया। See, you cannot understand the New Testament without first studying the Old Testament. देखिए, आप नए नियम को नहीं समझ पाते हैं पुराने नियम को पढ़े बिना। In the Old Testament, we see that the New Testament teachings are hidden.
आप देखेंगे कि पुराने नियम में नए नियम की शिक्षाएं छुपी हुई है And in the New Testament, the teachings of the Old Testament are revealed. और नए नियम में आप देखोगे कि पुराने नियम की जो शिक्षाएं है वे वास्तविक रूप में प्रकट होती है। That's why Paul wrote most of the New Testament and explained so many things to us. और इसलिए पौलुस ने बहुत सी पत्रियों को लिखकर जो है बहुत सी चीजों को समझाया है। He understood the Old Testament very well and knew it very well. और वह पुराने नियम को बहुत ही सही रीति से समझा, उसको उसे बहुत ही सही रीति से जाना भी है। But when he accepted Jesus Christ, then he truly understood it and gave us the true meaning of all the teachings. लेकिन जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और समझा, तब उसने उसके सही अर्थ को जाना भी और सही शिक्षा उसने सिखाई। So we see that Paul was very, very important person. तो इसीलिए हम देखते हैं कि पौलुस एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। And Paul was the one that spread the gospel to most of Europe. और पौलुस ही ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत से संपूर्ण यूरोप इस क्षेत्र में भी परमेश्वर का वचन प्रचार किया। So we see that he was someone that knew who he was and he knew the Bible really well. तो इसलिए हम देखते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो वचन की शिक्षा में या फिर बाइबल जानने में बहुत ही आगे था। And he was very proud. और वह बहुत ही घमंड भी करता था। The way he spoke was, in the beginning, if you read, was very proudful, and then later on, now he says he does not want to boast. और शुरुआत में अगर देखा जाए तो वो बहुत ही घमंड के साथ बोलता है, लेकिन अब अंत के समय में देखा जाए तो वह बहुत ही अपने आप को नम्र करते हुए बात करता है। Look at verse 7 in chapter 12. It says, "To keep me from becoming conceited because of the exceptional nature of these revelations, a thorn was given to me and placed in my body." वचन 7 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। And he says here, it was Satan's messenger to keep on tormenting me so that I would not become conceited. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि अर्थात शैतान ने मुझे वहाँ पर रखा है ताकि वो मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। So we see that clearly Paul realizes that he was proud. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही स्पष्ट रूप से पौलुस इस बात को समझता है कि वह घमंड कर रहा था। And he knows that God knows this. और वो यह भी जानता था कि परमेश्वर इस बात को जानते हैं। And because of that, God allowed Satan to constantly bother Paul. तो इसीलिए परमेश्वर अनुमति देते हैं शैतान को कि वो लगातार पौलुस के पास जाते रहे। Let's look at for a minute at some of the things that he went through. We go to 2 Corinthians chapter 11. और आइए हम लोग थोड़े समय के लिए कुछ और भी बातों को देखेंगे जिसमें पौलुस समावेश किया या फिर उसमें से प्रस्थान किया है। हम लोग 11वें अध्याय को देखेंगे, verse 23 onwards. 23। Here we see a list of the different things that Paul has suffered, which God allowed him to suffer. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक ऐसी बड़ी लंबी सूची को जिसमें से परमेश्वर ने उसको दुख भोगने के लिए अनुमति दी और पौलुस ने दुख उठाया। Says, "Are they ministers of Christ? I speak as a fool. I am more, in labors more abundant, in stripes above measure, in prisons more frequent, in deaths often." और वो इस प्रकार से कहता है, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने में। 5 times I received from the Jews 40 lashes minus 1. 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 times I was beaten with a stick. Once I was pelted with stones.
3 times I was shipwrecked, and I drifted on the sea for a day and a night. 3 बार मैंने बेतें खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। Then 26, I have traveled extensively and have been in dangers from rivers, robbers, my own people, and Gentiles. I have also been in danger in the city, in the open country, at sea, from false brothers, then in toil and hardship, through many sleepless nights, through hunger, thirst, many periods of fasting, coldness, and nakedness. वचन 26 और 27, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में। And we see in verse 28, besides everything else, I have a daily burden because of my anxiety about all the churches. और वचन 28, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। So now you see here that we have a whole list of all the troubles that Paul had faced. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वह एक बड़ी लंबी सूची को उस सभी दुखों के विषय में, जिस दुखों का सामना पौलुस ने अपने जीवन में किया। I think apart from hunger and thirst and maybe being cold, none of us will face anything else in life. और मुझे इस प्रकार से लगता है कि भूख प्यास या फिर उपवास इन बातों को छोड़कर या ठंडी इन बातों को छोड़कर हमने और किसी भी दुख का सामना अपने जीवन में नहीं किया होगा। I don't think we will ever be stoned or beaten with sticks for following Jesus Christ. और मुझे नहीं लगता कि यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए आप पर किसी ने पथराव किया या फिर लकड़ियों से आपको मारा गया हो। So here we see that Paul was someone that understood the word, was called to preach to the nations, and he suffered constantly. तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझता है और उसके वचन को लगातार प्रचार करता भी है। Now let's go back to 2 Corinthians chapter 12. आइए हम लोग वापस 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में आएंगे। And we see in verse 7 that Paul already understands that Satan is the one that is constantly troubling him. और यहाँ पर हम देखते हैं वचन 7 में कि परमेश्वर अनुमति देता है शैतान को, और शैतान ही है जो लगातार उसको घूसे मारते रहता है। And he knows that God is the one that has allowed Satan to do this. और वो यह भी जानता है कि परमेश्वर ही है जिसने शैतान को अनुमति देकर रखा है। And he also knows that God has allowed this so that Paul will stay humble. और वह यह भी जानता है कि परमेश्वर ने उसे क्यों अनुमति दे के रखी है, ताकि पौलुस नम्र बना रहे। Because God has given him a lot of power and a lot of revelations about the truth of the Bible. क्योंकि परमेश्वर ने उसको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा सामर्थ्य और प्रकाशन भी देकर रखा है बाइबल का। So we see here that Paul knows what his problem is. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जानता है कि उसकी समस्या क्या है। He knows that God knows that he needs to stay humble. और वो यह भी जानता है कि परमेश्वर जानते हैं कि उसे नम्र होने की आवश्यकता है। Paul is openly admitting that he has a problem with pride. और पौलुस जो है वह खुले तौर से इस बात का स्वीकार करता है कि उसको घमंड की समस्या है। Paul also knows that God is revealing things to him that he's not revealing to anybody else. और पौलुस यह भी जानता था कि परमेश्वर उस पर ऐसी बातों को प्रकट कर रहा है जो बातें वो और किसी पर प्रकट नहीं करता। And remember that Paul is the one that is sent to the Gentiles.
और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जिसे अन्य जातियों में भेजा गया। Paul had the knowledge of philosophy and knowledge of the world so he could talk to the people of the world. और पौलुस के पास जो है ईश्वर ज्ञान था और संसार का भी ज्ञान था, और वो जो लोग इस दुनिया में तत्व ज्ञान की बातें करते हैं वह भी वो समझ सकता था। See, Paul could talk in a very intellectual, very high level people of the world. और पौलुस जो है इस लायक था कि संसार के बड़े से बड़े औहदे के लोगों के साथ भी वह बात कर पाता था। And he could also speak of the simple things of God. और परमेश्वर की साधारण सी बातों को भी वह सही रूप से बोलने वाला व्यक्ति था। But even then, God still knew that he could lose Paul if Paul was not always in trouble. लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर जानता था कि वो पौलुस को खो सकता है यदि पौलुस के जीवन में संघर्ष ना भेजेगा तो। So that's why God allowed troubles constantly in Paul's life. और इसलिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में लगातार संघर्ष को भेजा है। And now let's see what Paul does here in verse 8. और अभी हम देखेंगे वचन 8 में पौलुस क्या करता है। In verse 8 says, I pleaded with the Lord 3 times to take it away from me. और यह वचन इस प्रकार से कहता है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए। So 3 times Paul asks God to stop Satan from troubling him. और 3 बार पौलुस ने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की कि उसे परेशान करना बंद कर दे। Now, how many times have you and I asked God to bind Satan? आप और मैं कितने बार शैतान को बांधने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? We do it with faith. We do it understanding that this is God's will. और हम लोग विश्वास से या फिर समझ के द्वारा इस प्रकार से सोचते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है। We might even say, Lord, this Satan is stopping me from doing your work. और आप इस प्रकार से कहते होंगे कि परमेश्वर, यहाँ पर शैतान मुझे आपके काम करने से रोक रहा है। You can even say, this Satan is giving me so many troubles that I have a hard time concentrating in studying the Word of God. और आप इस प्रकार से भी कह सकते हो कि परमेश्वर, शैतान मुझे बहुत सारे संघर्ष या परेशानियां दे रहा है, इसलिए मुझे परमेश्वर के वचन पर मनन करने, ध्यान करने या फिर पढ़ने के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। If anyone ever understood the power God has to bind Satan, that was Paul. और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो इस संसार में कि शैतान की शक्ति को परमेश्वर बांध सकता है, तो वो समझ रखने वाला व्यक्ति पौलुस ही है। So Paul asks with faith, not once, not twice, but 3 times. और पौलुस ने 3 बार विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना किया। You and I normally just pray once and we know God does it. और आप और मैं जो है एक ही बार प्रार्थना करते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर वो करता है। So how does God answer Paul? लेकिन पौलुस को परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया? Verse 9, but he has told me, my grace is all you need because my power is perfected in weakness. Therefore, I will most happily boast about my weakness so that the Messiah's power may rest on me. और वचन 9 इस प्रकार से कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। 2 Corinthians chapter 12 verse 10, then we see, this is why I take such pleasure in weaknesses, insults, hardships, persecutions, and difficulties for the Messiah's sake, for when I am weak, then I am strong. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 12 का 10 इस प्रकार से कहता है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। So we see here that God says no.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं भी कहता है। Paul asks him to bind Satan and to stop Satan from giving him all these troubles. पौलुस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर शैतान को बांध दे, उसके जीवन से निकाल दे, लेकिन परमेश्वर ने उसको नहीं सुना। Paul confesses that he has a problem with pride. और पौलुस जो है यहाँ पर अंगीकार करता है कि उसका घमंड के साथ समस्या है। Paul confesses that he knows that he is getting revelation from God constantly. पौलुस समझता है इस बात को, कि जानता है इस बात को कि परमेश्वर से वह लगातार प्रकाशनों को प्राप्त करते रहता है। Paul also knows that he is being used like no other apostle by God. और पौलुस यह भी जानता है कि परमेश्वर ने जैसे किसी भी प्रेरित को इस्तेमाल नहीं किया, उनसे भी बढ़कर पौलुस का इस्तेमाल कर रहा है। So even after Paul confesses all these things to God, God still says no. और यद्यपि पौलुस इन सब बातों का परमेश्वर के सामने अंगीकार करता है, तो भी परमेश्वर जवाब देते हैं नहीं कहते। Why? Because God knows that Paul needs to suffer all these things. क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि पौलुस को इन सब चीजों में दुख उठाना है। At the same time, Paul needs to be an example for the rest of the world of what God can do with someone. और उसी के साथ साथ परमेश्वर चाहते हैं कि पौलुस एक उदाहरण बने संपूर्ण संसार भर के लोगों के लिए, जो आगे में उसके वचनों को पढ़ेंगे। God has to use Paul as an example of how a life can be turned around from being a killer to someone that is killed for Jesus Christ. और परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल एक ऐसी गवाही के रूप में किया ताकि वो संसार को दिखा सके कि कैसे परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करता है जो कईयों को मारने वाला था, लेकिन अभी उन्हीं के समान प्रभु की सेवा करने वाला बना। And Paul also has been an example of someone that used to take people to prison for Jesus, those that follow Jesus, to become one that ends up in prison. और पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को जो है मसीह के पीछे चलने के कारण बंदी गृह में डाल देता था और उनका जीवन बंदी गृह में नाश कराता था। And then God himself puts Paul in prison. रिपीट कर सकते? Yes, God himself puts Paul in prison. और अब देखते हैं कि परमेश्वर ने खुद ने पौलुस को बंदी गृह में डाल दिया। So we see that Paul is used as an example for how a life can be changed. तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस एक उदाहरण के रूप में कि कैसे किसी का जीवन बदल सकता है। And then God also uses Paul as an example as someone who has to suffer because of their pride. I'm sorry, your voice broke in between. Yes, God uses Paul as an example of someone who has to suffer because of the pride in their life. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पौलुस का इस्तेमाल दुख उठाने के लिए भी इसलिए किया ताकि उसके जीवन में जो है वो घमंड में ना बढ़े। Now there's two more people we're going to talk about that also God used as an example. और अभी हम और दो लोगों के विषय में थोड़ा सा देखेंगे जिन्हें परमेश्वर एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। God said no to Moses and God said no to David. परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहकर उत्तर दिया और परमेश्वर ने दाऊद को भी नहीं कहकर उत्तर दिया है। Now these are two of the greats of the Old Testament, the great men of the Old Testament. और ये भी जो ऐसे लोग हैं जो पुराने नियम के दो महान लोग हैं। Moses stood in front of God face to face. मूसा परमेश्वर के सामने एकदम आमने सामने के रूप में खड़ा रहा। He stood so much in front of God that his whole body was full of God's glory. और एक ऐसा व्यक्ति था परमेश्वर के सामने जो परमेश्वर की पूरी महिमा से भरा हुआ व्यक्ति था। And when Moses spent time with God up in the mountain and he came down,
They had to cover his face because of the light that shone from him. और जब मूसा परमेश्वर के साथ पर्वत पर समय बिताता है और जब वो नीचे आता है तब उसे उसका चेहरा कपड़े से ढांप लेना पड़ता था, क्योंकि उसके मुंह से जो है सूरज के किरणों के जैसी रोशनी दिखाई देती थी। So he was someone that was so close to God that people could literally not look at his face. और यह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता में था, बहुत ही उसके क्लोज था, और इसी कारण लोग जो है मूसा के चेहरे को भी नहीं देख पाते थे। If you read the book of Exodus and the story of Moses, you will notice there is one thing with him that is always wrong. और यदि आप निर्गमन की पुस्तक को देखोगे तो वहां पर हमेशा एक बात दिखाई देती है, and you will notice that Moses was someone that had a very short temper. और यहाँ पर हम देखते हैं हमेशा मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे जल्दी ही क्रोध आता था। Moses, as you know, grew up in the Pharaoh's temple. और जैसे हम जानते हैं कि मूसा जो है वो फिरौन के महल में बड़ा हुआ व्यक्ति है। Moses was someone that knew many languages. मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जिसे बहुत सी भाषाएं आती थी। He was very smart. वह बहुत ही स्मार्ट था, ज्ञानी था। He was trained to be a leader. और वह उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया था ताकि वो एक अच्छा अगुवा बन पाए। And he was taught how to fight. और उसको प्रशिक्षण दिया गया था इस बात का भी कि कैसे युद्ध करे। So when we see the story, when he sees two Hebrew people fighting, when he sees an Egyptian man abusing a Jewish person, और यदि आप उसकी कहानी को देखो तो आप देखोगे कि एक मिस्री व्यक्ति एक इब्री व्यक्ति पर जो है सताव कर रहा होता है। He goes and he kills the Egyptian man. और तब मूसा जाकर के उस मिस्री व्यक्ति को मार डालता है। And we see many other times that he gets angry very easily. और हम और भी अन्य जगहों पर देखते हैं कि वो बहुत ही आसानी से क्रोध में आ जाता है। He knows how to fight. उसे मालूम है कि कैसे लड़ाई करे। The way he meets his future wife also is after a fight. और वह अपनी पत्नी को भी प्राप्त इस प्रकार से करता है, वह लड़ाई करने के द्वारा। When Moses came down first time from the mountain with the 10 commandments, जब मूसा पहली बार पर्वत में से नीचे उतर कर आया 10 आज्ञाओं के उस पट्टियों के साथ, तो when he saw that the people of God had turned away and had made an idol, और उसने देखा कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर से भटक गए और उन्होंने अपने लिए एक मूर्ति बना ली। what did Moses do? तो मूसा ने क्या किया? He threw the tablets and broke them. उसने जो है उस पत्थर की पट्टियों को उसके ऊपर फेंक कर उसको तोड़ डाला। He did this out of anger. और उसने यह क्रोध में आकर किया। Imagine if you came to a church meeting. अब इस प्रकार से सोचे कि मानो आप कोई कलीसिया में आए प्रार्थना करने के लिए। If you are a pastor. और आप एक पासवान हैं। And everything is upside down in the meeting. और उस सभा में सारी चीजें उथल-पुथल हो रही हैं। Things are not the way they're supposed to be. और जिस प्रकार से वो चीजें होनी चाहिए उस प्रकार से वो बातें नहीं हो रही है। Everybody is failing at their job. और हर एक अपना काम करने में असफल हो रहे हैं। And you rip the Bible. और आप जो है बाइबल फाड़ डालते हो। You don't even give the word. आप उन्हें वचन नहीं देते हो। This is exactly what Moses did. ऐसी बात है जो मूसा ने वहां पर किया। He represented God in a bad way. उसने परमेश्वर को एक बहुत ही बुरे तरीके से प्रस्तुत किया वहां पर। He did not represent a God of compassion. उसने एक दया या फिर एक तरस खाने वाले परमेश्वर को वहां पर प्रस्तुत नहीं किया। Yes, God is someone that is serious and he will judge us. निश्चित ही परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर भी है जो बहुत ही गंभीर है और जो हमारा न्याय भी करता है। But first he will have
compassion. First, he will be someone that gives us another chance. लेकिन पहले वो एक ऐसा परमेश्वर है जो हम पर तरस खाता है और वो हमें पहले एक मौका भी देता है. So here we see that Moses did the wrong thing and he acted out of anger and he broke God's word. तो यहाँ पर हम देखते हैं मूसा ने एक गलत बात की है यहाँ पर और क्रोध में आकर उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ डाला. And then we see that at the end, when they're about to enter the promised land, और हम देखते हैं कि अंत में जब वो प्रतिज्ञा किए हुए शहर में पहुंचने पर ही था, तब you can read this in Deuteronomy chapter 3, और इस बात को आप पढ़ सकते हो व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय में verse 23 onwards, वचन 23 से आगे, that Moses is denied to go into the promised land. कि मूसा को प्रतिज्ञा किए हुए शहर में जाने से रोका गया. Why? Because God instructed Moses to speak to the rock to get water out from the rock. क्योंकि परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि वह उस चट्टान को बोले कि उसमें से पानी निकल जाए. This was the second time that he was doing this. और यह दूसरी बार है कि वो ऐसा कर रहा था. God told him to speak to the rock and water came out. परमेश्वर ने कहा था कि उस चट्टान से बोले और उसमें से पानी निकल आया था. And the second time God told him the same thing. He did not speak to the rock, but he hid the rock. और दूसरी बार भी परमेश्वर ने वैसा ही करने के लिए मूसा से कहा था, लेकिन उसने उस चट्टान से बात नहीं की, उस पर बोला नहीं, लेकिन उसने उस लकड़ी को, उसकी छड़ी को उस चट्टान पर मारा. And he struck the rock out of anger and frustration because of people were murmuring. और वहां पर जो है लोगों के उस क्रोध या फिर उनके बलवा करने के कारण जो है बहुत ही तनाव में आकर के उसने उस चट्टान पर छड़ी मारी. Now understand the Moses' frustration because they had been nearly 40 years walking in circles in the desert. और यहाँ पर आप समझ सकते हो कि पौलुस का तनाव कितना भयंकर था, क्योंकि वो लगभग 40 वर्षों से उस जंगल में भटक रहे थे. And Moses knew that it was because of these people that he was stuck with them 40 years instead of entering the promised land sooner. और मूसा जानता था कि इन लोगों के कारण और इनके बलवा करने वाले ऐसे स्वभाव के कारण मूसा जो है वह भी परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा किए हुए शहर में जल्दी से नहीं पहुंच पा रहा है. So out of frustration, once again, he did not do what God asked him to do. और ऐसे तनाव के कारण फिर से एक बार वह जो परमेश्वर ने उससे कहा था वो काम नहीं कर सका. So we see that in this chapter, Moses actually asks God to please let him enter the promised land. तो यहाँ पर हम देखते हैं इस अध्याय में कि परमेश्वर मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है गिड़गिड़ा कर कि कम से कम उससे प्रतिज्ञा करने वाले शहर में जाने की अनुमति मिले. And God clearly answers saying no and do not talk about this anymore with me. और परमेश्वर उसको बड़े ही स्पष्ट रूप से जवाब देता है कि नहीं, और अभी इसके विषय में तुम बिल्कुल भी बात भी नहीं करना है. Imagine if God tells you don't ask again. आप सोचो कि अगर परमेश्वर आपसे इस प्रकार से कहे कि आप फिर से मुझे मत पूछो. This goes against our whole understanding of prayer. तो यही जो है हमें बताता है प्रार्थना के विषय में संपूर्ण समझ को देता है. Because in the New Testament we have the teaching that we need to constantly pray without stopping and get what we're asking for. और क्योंकि नए नियम में हम देखते हैं कि शिक्षा को कि आपको आपकी प्रार्थना का जवाब मिलने तक लगातार प्रार्थना करने के विषय में नया नियम आपको सिखाता है. But here we see that God tells Moses, no and don't ask me again. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा से कहता है नहीं, और इसके पश्चात और मुझसे यह बात न पूछना. Finally, Moses died right before they crossed the Jordan River. और फिर उसके बाद मूसा की मृत्यु होती है उस जगह पर जो यर्दन नदी के एकदम निकट है. Now, Moses didn't die because he was sick or because he was old. और मूसा जो है
वृद्ध होने के कारण या बीमार होने के कारण नहीं मरता, because the Bible says that Moses died at the age of 120, क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि मूसा उसके उम्र के 120 वर्ष होकर के मरा, and he was still with full sight and full strength. और वह आखिर तक जो है पूरी सही दृष्टि और सही बल के साथ था। So God took his life तो परमेश्वर ने उसके जीवन को ले लिया, because he could not allow Moses to be in the promised land. क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी थी कि वह प्रतिज्ञा प्राप्त किए हुए शहर में प्रवेश करे, Because God could not allow someone that had seen him face to face to act in this way. क्योंकि परमेश्वर ने उसको अनुमति नहीं दी थी उस व्यक्ति को जिसने परमेश्वर को आमने सामने देखा, वह इस प्रकार का कार्य करता है। And now we finish with David और अभी हम लोग दाऊद की कहानी बताकर समाप्त करेंगे। in 2 Samuel chapter 12. दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय। Please read it in your own time. आप कृपया अपने समय निकाल कर पढ़ लेना। We see here that David goes into adultery and he has a child with Bathsheba. और यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद जो है वह व्यभिचार करता है और उस बत्शेबा के द्वारा उसको एक संतान उत्पन्न होती है। And then the prophet Nathan tells David that God has seen your sin. और फिर भविष्यवक्ता नाथान आकर के उसको बताता है कि परमेश्वर ने देखा है कि दाऊद ने किस प्रकार से पाप किया। And then the son gets sick. और फिर जो पुत्र है वो बीमार हो जाता है। Nathan the prophet tells David that God will not kill you, but he will take the life of your son. और फिर नातान जो भविष्यवक्ता है वो दाऊद से आकर के कहता है कि परमेश्वर तुझे नहीं मारेगा, लेकिन उस बच्चे को जो तूने प्राप्त किया है। And David knows he is wrong. David knows he has done very wrong against God. और दाऊद जानता है कि वो गलत है, वो जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि में उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है। And even if God takes his life, he deserves it. और यदि परमेश्वर उसका जीवन भी ले ले तो वो उसके लायक ही था। But then we see that David still prays and fasts, asking God to save his son's life. लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दाऊद जो है उपवास करके प्रार्थना करते रहता है ताकि परमेश्वर उसके बच्चे के जीवन को बचा दे। And we see that finally the child dies. और लेकिन हम देखते हैं कि अंत में वो बच्चा मर जाता है। And David just gets up, goes, takes a shower and eats. और फिर हम देखते हैं कि दाऊद उठ जाता है, जाकर नहाता है और भोजन करता है। Because David understands God's heart. क्योंकि दाऊद परमेश्वर के हृदय को समझता था। And he understands that everything God does is for a good reason. और वो समझता था कि हर एक बात जो परमेश्वर करता है वह अच्छाई के लिए ही करता है। When you read the book of Psalms, these are the songs written by David. तो यदि आप भजन संहिता पढ़ो तो ये कुछ ऐसे भजन है, गीत है जो दाऊद ने लिखे। God himself says that David is a man after his own heart. और परमेश्वर स्वयं कहता है कि दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके हृदय के निकट रहने वाला व्यक्ति है। So God says no to David for the life of his innocent teenage son. और परमेश्वर दाऊद के उस मासूम बच्चे के प्राण के लिए नहीं कहकर जवाब देता है। And then later on we see also that God says no to David for building the temple. और उसके बाद हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद को मंदिर बनाने के लिए भी नहीं कहकर जवाब देता है। He says your son Solomon will build the temple. और वो कहता है कि तेरा पुत्र सुलेमान मंदिर को बनाएगा। So we see that God sometimes can say no even to the great ones that follow him. और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कभी-कभी अपने उन बड़े और महान सेवकों को भी नहीं कहता है जो उसके पीछे चलते हैं। Even those that are doing great and wonderful things that nobody else in the world has done yet.
कुछ ऐसे लोग भी जो परमेश्वर के लिए कुछ ऐसे महान और अद्भुत काम करते हैं जो दुनिया में कोई भी नहीं करता, तो भी Even if you are someone that is going to change a whole nation, God can still say no to you. और शायद हो सकता है कि आप कोई ऐसे व्यक्ति भी क्यों ना हो जो संपूर्ण संसार को बदल दे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपको भी नहीं कह सकता है। God said no to Moses. परमेश्वर ने मूसा को नहीं कहकर जवाब दिया, God said no to David. परमेश्वर ने दाऊद को नहीं कहकर जवाब दिया, And God said no to Paul. और परमेश्वर ने पौलुस को भी नहीं कहकर जवाब दिया। So with all the great things God can allow you to do and says yes for all the time. तो With all the great things God can make you do and say yes so many times. और हो सकता है कि बहुत से बड़े बड़े काम परमेश्वर आपको करने की अनुमति दे और बहुत बार आपको हाँ कहकर भी जवाब दे परमेश्वर। There will be some times when He will say no. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे समय भी रहेंगे जहां पर परमेश्वर कहेगा नहीं। And all you have to answer is the way Paul answered. और हर समय आपको जो है उत्तर इसी प्रकार से देना है जैसे पौलुस ने उत्तर दिया, That His grace is enough for us. कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, And when you are weak, He is strong. और जब आप कमजोर है वह बलवान है। So we'll continue and finish with this topic next week. तो हम लोग लगातार इसी टॉपिक में बने रहेंगे और अगले सप्ताह में इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे। Thank you for joining us through social media. धन्यवाद हम सभी के साथ सोशल मीडिया के द्वारा जुड़े रहने के लिए। We ask you to continue to pray for us. आपसे विनती करते हैं कि लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। And if anyone wants to know Jesus Christ personally, please contact us. और यदि कोई भी हमें व्यक्तिगत रूप से यीशु मसीह के द्वारा जानना चाहते हैं, कृपया हमें उसके लिए कांटेक्ट कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे Have a wonderful week ahead. और आपका एक अद्भुत सप्ताह हो।